Guys, let's start May, June 2023, variance 22. Duration of this paper is 1 hour 15 minutes, and we need to attempt all the questions, okay? Question number one. The melting point of some solids are shown in table 1.1. State the type of bonding present in magnesium and in solid sodium chloride. आप जानते हैं कि ये आपके पास मेटल है और ये आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है। इसलिए ये मेटल है और ये एक आयोनिक कंपाउंड है। सही। एग्जामिनर इज आस्किंग बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम। मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग होगी ऑब्वियसली। बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्डिंग होगी। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। देखो, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास 923 केल्विन और सोडियम क्लोराइड का है 1074 ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब जो आयनिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड वीकर होगा। बट द क्वेश्चन इज कि ये स्ट्रॉन्गर क्यों है? क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती है, जबकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वीकर होती है। एक चीज और भी बता सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब भी मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड डिस्कशन करें, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन हो या नहीं, हम हमेशा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आंसर देंगे। तो हम अभी भी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ही आंसर देंगे। और हम आंसर कुछ इस तरह से देंगे कि हम एग्जामिनर को ये बताएंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम क्लोराइड हैज अ जॉइंट ionic lattice सही है, which is why it has a strong electrostatic attraction magnesium has joint metallic lattice electrostatic attraction is weaker than ionic bond between positive ion and C of electron is weaker than ionic bond. Now the next is explain difference in the melting point of phosphorus and sulfur in terms of structure and bonding. तो हम बताएंगे कि सल्फर exhibit
covalent bonding and has a molecular structure. It has a large surface area. Hence, it has strong van der Waals forces. Phosphorus has covalent bonding and molecular structure. It has weak van der Waals forces because it has a smaller surface area. Okay. Define electron negativity. The ability of an atom to attract bonded electron to itself is called electron negativity. Electronegativity. Explain why electron negativity increases across the period. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड शील्डिंग रिमेन्स सेम and shielding remain same. Okay. Next, name the strongest intermolecular force that exists between liquid ammonia molecules. The liquid ammonia exhibits hydrogen bonding. Okay. Next is draw the diagram to show the formation of the strongest intermolecular force. इसका मतलब एग्जामिनर कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन शो करो between two molecules of ammonia liquid. Include any relevant lone pairs of electrons and dipoles. That's an easy task. लिक्विड अमोनिया है तो ऑब्वियसली लिक्विड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये आपने NH3 लिखा ये इसका लोन पेयर आ गया है एक और अमोनिया लिख लीजिए ये आ गया अमोनिया और ये इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है आप जानते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट which is why it has slight negative charge
whereas all the hydrogen atoms have slight positive charge. तो डायपोल्स अप्लाई कर दिए मैंने. Now, electrostatic attraction exists between more electronegative element and hydrogen atom is hydrogen bond. इसको हम लेबल कर देते हैं. बाय द वे ये हाइड्रोजन भी कर रहे होंगे और ये हाइड्रोजन भी कर रहा होगा. सही. The melting point of ice and ammonia are shown in table 1.2. Suggest two reasons for the difference in the melting point of ice and ammonia. आप नोट करें. Ice का melting point is higher than ammonia. Why? Because ice exhibits extensive hydrogen bonding. And the second reason is oxygen is more electronegative element than nitrogen. Okay. So that's the end of question number 1. Let's move on to the next question. Let's see what we have in that. Chlorine is reactive element. It forms many compounds. Complete table 2.1 to show the maximum oxidation number of the element sodium to phosphorus in their chloride. So sodium chloride में oxidation स्कोर होगी +1, magnesium chloride में +2, aluminum chloride में +3, SiCl4 में +4, PCl5 के अंदर +5 होगी. ठीक है जी. क्योंकि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है, इसलिए हम फॉस्फोरस के लिए PCl5 लेंगे इंस्टेड ऑफ PCl3. ओके. क्योंकि हाईएस्ट इसी में होगी, मैक्सिमम इसी में होगी. फिर वो कह रहे हैं आपसे स्टेट व्हाट डिटरमिन्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड 3. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग, number of valence electron available for bonding. Next is an excess of cold water is added to chloride of silicon, sorry, write an equation for the reaction between an excess of cold water and the chloride of silicon. That's an easy task. Chloride of silicon is SiCl4. वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. So it's going to be SiOH taken 4 plus 4HCl. आप चाहें तो SiO2 वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होगी एग्जामिनर के लिए, गलत नहीं. ठीक है. Suggest the pH of the solution produced in B part 1. Since strong acid बना है तो मैं pH suggest कर देता हूँ 3. And excess of cold water is added to chloride of phosphorus. अच्छा, हम pH को 1 decimal place पे लिख देते हैं 3.0. Write an equation for the reaction between an excess of cold water and the chloride of phosphorus. तो chloride of phosphorus हमने PCl5 लिया है, हम यहाँ PCl5 लिखेंगे. वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, कन्वर्ट करेंगे H3PO4 प्लस 5HCl में, और ये 4 मोल्स है. ठीक है. सजेस्ट द pH ऑफ द सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन C1. तो मैंने आपको क्लास में 3 to 5 लिखवाया है, तो आप 3 to 5 की रेंज लिखेंगे.
3 इसके लिए और 5 इसके लिए, दोनों एसिड हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इसलिए। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। क्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और क्लोरिक 1 एसिड बनेगा। ठीक है, और अगर आपको याद हो ये क्लोरिक 1 एसिड जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और बैक्टीरिया और जर्म्स को यही किल करता है। ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद हॉट NaOH। दैट्स एन इजी टास्क अगेन। हॉट NaOH के लिए हम लेंगे इक्वेशन 6 NaOH plus 3Cl2 converting into sodium chloride, sodium chlorate 5 and water। so ये क्या हो जाएगा आपके पास, सोडियम क्लोरेट 5। ठीक है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बाय द वे। नेक्स्ट इज bleach is used as a cleaning product to kill bacteria. It is made by adding compounds like sodium chlorate 1 to water. Identify the formula of the ion present in bleach that kills bacteria। अच्छा, ये आपका बैक्टीरिया, सॉरी ये आपका ब्लीच का फॉर्मूला है, और इस ब्लीच के फॉर्मूले में दो चीजें हैं आपके पास। एक है आपके पास सोडियम आइन विच हैज +1 चार्ज, और दूसरा है आपके पास ClO, क्योंकि क्लोरीन के सोडियम के ऊपर +1 है इसलिए इस पूरे के पूरे आयन के ऊपर -1 चार्ज होगा। सो दैट्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को जर्म्स को किल करता है, ClO नेगेटिव। Sodium chlorate 1 reacts with hydrogen peroxide to produce sodium chloride, water and oxygen gas। बहुत इजी है, एग्जामिनर ने रिएक्टेंट्स बता दिए, एग्जामिनर ने प्रोडक्ट्स भी बता दिए, तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और स्टेट सिंबल्स भी नहीं डिमांड कर रहे। सो दैट्स इजी अगेन, NaClO प्लस H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये फॉर्मूला है। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास सॉल्ट में, दैट इज सोडियम क्लोराइड, वाटर में एंड ऑक्सीजन गैस में। सो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, a sample of bleach W contain an unknown concentration of sodium chlorate 1। 10 cm cube of W is diluted with distilled water to make a total volume of 100 cm cube। इसका मतलब ये हुआ एग्जामिनर ने W का 10 cm cube लिया और 100 cm cube वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको प्लेस किया, डिस्टिल वाटर से सोल्यूशन मेकअप किया, फिर उसमें से 25 cm cube डाइल्यूटेड ब्लीच सोल्यूशन लिया और उसको ऐड किया एक्सेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस मेजर्ड अंडर रूम कंडीशन। The experiment is repeated, and on average 25 cm cube of diluted bleach solution produces 42 cm cube of gas। Calculate the concentration in gram per dm cube of sodium chlorate 1 in W। So first of all मैं मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस, जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो डिटरमिन करता हूं। एग्जामिनर ने 42.0 कहा हुआ है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 24,000 cm क्यूब से। सो मेरे पास मोल्स हो जाएंगे 1.75 इंटू 10⁻³ मोल्स। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन में और इसमें 1:1 का रेशियो है, तो जो मोल्स ऑक्सीजन के हैं वही मोल्स सोडियम क्लोरेट 1 के होंगे। तो मोल्स ऑफ NaClO इज ऑल्सो 1.75 इंटू 10⁻³ मोल्स। अच्छा, ये जो मोल्स आपने निकाले हैं ये 25 cm क्यूब में थे, अगर आपको याद हो, 25 cm क्यूब, तो वो 25 cm क्यूब मैंने 100 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से लिया था। सो कंपेयर कर लेते हैं 100 cm क्यूब से, तो 25 cm क्यूब of diluted solution of bleach contain 1.75 into 10⁻³ moles। सो अगर आपने 100 cm क्यूब लिया है,
So how much moles we have? So we have 7 into 10 to the power minus 3 moles. जो मोल्स 100 सीएम क्यूब में आपने कैलकुलेट किए एग्जैक्टली यही मोल्स 10 सीएम क्यूब में भी होंगे, क्योंकि आपने 100 सीएम क्यूब को 10 सीएम क्यूब से बनाया है, ठीक है। तो 100 सीएम क्यूब contains 7 times 10 to the power minus 3 moles, और आपने 10 सीएम क्यूब में लिया, तो सॉरी 10 सीएम क्यूब है ना, माय बैड, 10 सीएम क्यूब कंटेन दिस मच मोल्स। तो कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए 1000 सीएम क्यूब से कंपेयर करूंगा मैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ NaClO आ जाएगा मेरे पास 0.7 mole per dm cube. Now I need to find the concentration in gram per dm cube. So मेरे पास फॉर्मूला होता है मोल पर dm cube into mr। मेरे पास मोल पर dm cube ऑलरेडी है 0.7। mr ऑफ सोडियम क्लोरेट 1 होता है 74.5। ये आप पीरियोडिक टेबल यूज करके डिटरमाइन करेंगे। तो concentration in gram per dm cube of sodium chlorate 1 is going to be 52.15। okay, the answer is going to be 52.15 gram per dm cube। so that's the end of question number 2, I believe. Let's move on to the next question. Organic one, okay, my favorite one in fact. Figure 3.1, describe a sequence of the reactions that can be used to produce a food additive compound Y from this compound। ये एक हैलोजेनो अल्केन है। आप नोट करें Cl की जगह Cn आया है, फिर ये CnCOOH में कन्वर्ट हुआ है, राइट। कन्वर्जन तो बहुत ही क्लियर कट है। यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर आप सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे इन एथेनॉल। कंडीशन हमारे पास रिफ्लक्स होगी। एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप यहाँ पर, ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है कि आप HCl एक्वस यूज कर रहे होंगे, COOH बन जाएगा। बाय द वे ये एसएन रिएक्शन है, हाँ। So let's talk about the part A1. State the reagent conditions for step 1. Reagents, sodium cyanide, आप पोटेशियम साइनाइड यूज कर सकते हैं। इन एथेनॉल, ये एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। कंडीशन जो है वो रिफ्लक्स या हीट इन द रिफ्लक्स, ठीक है। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ एक्स। एक्स इज 3 कार्बन एटम का नाइट्राइल, इज प्रोपेन नाइट्राइल। Identify the type of reaction that occurs when a dilute acid is added to X in step 2। Type of reaction मैंने आपको बताया था, acid hydrolysis, क्योंकि CN कन्वर्ट हो रहा है COOH में। In step 3, Y and a gas are produced। Construct an equation for step 3। Okay, अब देखें ये है प्रोपानोइक एसिड और आप इसको कैल्शियम से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री, व्हेन एनी मेटल react with any acid, then always hydrogen gas is formed along with a salt। So guys, we need to make a salt, ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए। तो थोड़ी सी वर्किंग करके दिखा देता हूं मैं आपको।
ये जो आपके पास प्रोपेनिक एसिड है, इससे आपको प्रोपानोइट आइंस मिलेंगे, एंड दीज प्रोपानोइट आइंस हैज -1 चार्ज, जबकि कैल्शियम हैज 2+ चार्ज। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं चार्जेस को, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनकर आएगा, CH3 CH2 COO टेक इन टू एंड Ca, एंड दैट्स माय सॉल्ट, जिसको मैंने यूज करना है इक्वेशन बनाते हुए। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं। ये हो जाएगा CH3 CH2 COH, और हम इसको कैल्शियम से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 COO टेक इनटू कैल्शियम प्लस H2। जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रोपानोइड 2 मोल्स हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, एंड दैट इज द इक्वेशन। फिर वो कह रहे हैं कि प्रोपेनिक एसिड कैन आल्सो बी फॉर्म फ्रॉम प्रोपेन 1 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड। तो जाहिर सी बात है, अम, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो 2 स्टेप कंडीशन होती है, मोर देन 1 स्टेप कंडीशन होती है, एंड फॉर दैट आई नीड हीट अंडर रिफ्लक्स। सही है। Complete table 3.1 to show the number of sigma bonds and pi bonds present in molecule of X। सबसे पहले तो बात करते हैं X है क्या। X प्रोपेन नाइट्राइल है, तो लेट मी ओपन द स्ट्रक्चर। प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। सबसे पहले तो पाई बॉन्ड डिटरमिन करो। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो पाई बॉन्ड तो हमारे पास 2 है। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, and this one is 8. So we have 8 sigma bond. Okay, I hope it makes sense to you. Question number 4. In industry, ethanol is made by reacting ethene with the steam in the presence of phosphoric acid। सारे के सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है, इसका मतलब इस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाई करवा सकता है एग्जामिनर। यूज द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन 1। तो इस रिएक्शन को हम ओपन करके लिखते हैं ताकि हमसे कोई भी कोवलेंट बॉन्ड मिस ना हो। तो ये हो जाएगा CH2 प्लस स्टीम एरो इथेनॉल। ओके, तो देखो इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की एनर्जी है टेबल में 410, ये गिवन है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 4 से, बिकॉज वी हैव 4 बॉन्ड्स, 1 2 3, एंड दिस वन इज 4। सो हमारे पास आंसर आएगा 1640। ओके, फिर है हमारे पास OH। OH की एनर्जी टेबल के अंदर गिवन है 460, ये गिवन है। एंड वी हैव हाउ मेनी OH के बॉन्ड। एक OH का बॉन्ड ये है, और दूसरा OH का बॉन्ड ये है। सिंस वी हैव 2 बॉन्ड, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 920। आप नोट करें, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है 610। तो हम उसको भी लिख लेते हैं यहाँ। इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 3170। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जी हो गई।
यानी दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, ओके, क्योंकि रिएक्टेंट में हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, प्रोडक्ट में हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, याद रखिएगा। अगेन वी नीड टू फाइंड आउट। सबसे पहला है कार्बन हाइड्रोजन। वी नो कि उसकी बॉन्ड एनर्जी 410 है, एंड वी नो एंड वी कैन सी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 बॉन्ड्स हैं, तो इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2050। फिर हमारे पास कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन का जब बॉन्ड होता है तो हम उसकी एनर्जी लेते हैं 350। फिर हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 360। फिर हमारे पास ओ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 460। सो हम इन तमाम बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी 3220। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर द अबव इक्वेशन। For that, I will use delta HR equals to reactant minus product का formula। डेल्टा एच आर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट है हमारे पास 3170, प्रोडक्ट है हमारे पास 3220। सो डेल्टा एच आर फॉर द above reaction is going to be minus 50 किलो जूल्स पर मोल, तो ये हो जाएगा माइनस 50 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट इज reaction 1 reaches equilibrium at constant temperature and pressure. Deduce what effect increasing the pressure will have on the amount of ethanol in the new equilibrium mixture. Use Lee Shuttler's principle to explain your answer. Effect of increasing pressure. Okay. मैंने आपसे कहा था कि effect of pressure पूछ सकता है. Since we have 2 moles here and we have 1 mole here and we are increasing the pressure, so equilibrium favors towards right hand side because of less volume and less number of moles. So amount of ethanol increases. Why? Because equilibrium favors towards right hand side as number of moles are less. Okay. Part C. The mechanism for the reaction 1 can be described in 3 steps. Step 1 and 2 for reaction 1 are shown in figure this. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एग्जामिनर ने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। इट हैज स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन हैज स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तब जाकर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन को शिफ्ट होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसलिए इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, ऑक्सोनियमाइन बना रहा है, और फिर ऑक्सोनियमाइन से प्रोडक्ट। तो वो पूछ रहे हैं आपसे, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ H3PO4 इन स्टेप 1, एक्सप्लेन योर आंसर। आप नोट करें इस स्टेप 1 में H3PO4 ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है, इसका मतलब प्रोटॉन डोनर है, इसका मतलब ये एसिड है। तो हम लिखेंगे H3PO4 is proton donor, hence it is acting as an acid। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहे हैं, मीनिंग एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। Identify the species that behaves as an electrophile in step 2, explain your answer।
स्टेप टू में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ये कार्बोकैटायन है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम लिखेंगे CH3, CH2 positive is acting as an electrophile. क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, बिकॉज कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज carbon has positive charge and steam is reacting with it. Okay. Part third, let me check which rep on here. Yeah. Part third, complete figure 4.2 to show the mechanism for step 3 of reaction 1 include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. Okay. So होगा ये कि ये नेगेटिवली चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। एट द सेम टाइम ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा ताकि ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो। एज अ रिजल्ट यू विल गेट एथेनॉल विच इज योर प्रोडक्ट, और ये फॉस्फोरिक एसिड वापस आपको रिकवर हो जाएगा। डिस्क्राइब हाउ अ कैटलिस्ट अफेक्ट अ रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। सो कैटलिस्ट provides an alternative route by lowering the activation energy. Okay. Next, use figure 4.1 and 4.2 to justify why phosphoric acid is described as catalyst in reaction 1. आप नोट करें मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया था फॉस्फोरिक एसिड से, मुझे वापस फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है, इट मींस इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। इसका मतलब ये वापस रिकवर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज H3PO4 will recover at the end of the reaction. Next, propene also reacts with the steam. A mixture of organic product is produced. Explain why propane 2-ol is produced in the higher yield. हाँ, अब नोट करें, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर मार्कोनी कोफ रूल फॉलो होगा। और मैंने क्लास में बताया है कि मार्कोनी कोफ रूल के लिए हम हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन को फोकस करके एक्सप्लेनेशन देते हैं। सही है। तो अगर प्रोपेन टू ओल प्रोड्यूस्ड इन हायर यील्ड, इसका मतलब प्रोपेन टू ओल सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से फॉर्म होगा, क्योंकि अगर प्रोपेन 1-ol होता तो वो प्राइमरी कार्बोकैटाइन से फॉर्म होता। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोपेन टू ओल is obtained by a secondary carbocation which is
stabilized through positive inductive effect of two electron donating alkyl groups. Okay. Next, describe the covalent bonds present between the carbon atom in ethene molecule by completing table 4.2. So we have done this, we have done in hybridization. If you remember, मैंने काफी डिटेल से करवाया था. मैं यहाँ इसका स्ट्रक्चर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए. मैंने आपसे कहा था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. तो ये कार्बन भी क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. एंड ऑब्वियसली कार्बन का सेकंड शेल यूज हो रहा होता है, तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं कार्बन के हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. जबकि और इसके जो pz ऑर्बिटल होते हैं और इसका जो pz ऑर्बिटल होता है यानी 2pz इनके 2pz ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2pz जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है. और पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है. साइड वाइज ओवरलैपिंग को मैंने क्लास में बताया लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं. ओके, that's the end of question number 4. Let's talk about the question number 5. Describe structural isomerism. यहाँ लिखेंगे compounds which have the same molecular formula but different structural formula are called structural isomers. वो कह रहे हैं A and B are structural isomers with molecular formula C5H10O. Since it has only one oxygen, तो ये अल्कोहल भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये ईथर भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, दे आर बोथ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल, यानी ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स हो गया, एलिफेटिक एंड कंटेन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप. ओके, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि ये अल्कोहल भी हो सकता है बिकॉज इट हैज वन ऑक्सीजन, राइट. इट कैन बी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, और इट कैन बी ईथर बिकॉज ईथर आल्सो कंटेन वन ऑक्सीजन एटम. ओके, describe observations when separate samples of A and B are added to different reagents. 2,4-DNPH से रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑरेंज प्रेसिपिटेट अपीयर हो रहे हैं, ऑरेंज प्रेसिपिटेट अपीयर हो रहे हैं ए और बी में. तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल है. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं आपसे टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर अपीयर हुआ, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड है, इसमें रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये कीटोन है. तो इसका मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जब रिएक्शन नहीं हुआ तो ये कीटोन को रिप्रेजेंट करेगा.
ये भी कार्बोनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कार्बोनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अम, इसमें आइडोफॉर्म का टेस्ट नहीं आ रहा दोनों में। इसका मतलब CH3 CO ग्रुप एब्सेंट है, इसमें भी CH3 CO ग्रुप एब्सेंट। तो एक बात तय हो गई है, और वो ये कि ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। सही है। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, तो आप जवाब देंगे कार्बोनाइल। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द बॉक्सेस। तो 5 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर मैंने बना के देना है। अच्छा, वो स्ट्रक्चर कह रहे हैं कैटेगोरिकली, तो हम स्केलेटल भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो मैं बेसिकली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। CH3 CH2 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 CHO, 5 कार्बन एटम का एल्डिहाइड और अब 5 कार्बन एटम का कीटोन। और मैंने मेक श्योर करना है कि कीटोन जो है वो ये वाला बने, जिसमें हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव ना आए। राइट। अगर कोई बच्चा इस तरह से लिखेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप एक साथ है। यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि वो यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। सही है। आप चाहे तो स्केलेटल स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं इसका, क्योंकि उसने कोई चीज कैटेगोरिकली मेंशन नहीं की है, इसलिए हम इसको इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल होगा। Now the next is C is the structural isomer of A and B. C is a straight chain and has 2 functional groups. That's a very important sign. It has 2 functional groups, right? C only shows one type of stereoisomerism. Oh, one type of stereoisomerism. So it could be geometrical or optical. तो मुझे और आपको मिलकर ये डिसाइड करना है कि इसमें होगा कौन सा, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, दोनों हो सकते हैं। और 2 फंक्शनल ग्रुप्स कह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो 2 फंक्शनल ग्रुप्स किस तरह से होने चाहिए। तो उसके लिए उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और डिस्क्राइब किया हुआ है। सेपरेट सैंपल्स ऑफ सी आर एडेड टू डिफरेंट रिएजेंट्स, 2,4-DNPH, नो रिएक्शन। इसका मतलब नो एल्डिहाइड, नो कीटोन। नो एल्डिहाइड, नो कीटोन। देन फिर वो कह रहे हैं एक्वस ब्रोमीन ऑरेंज टू कलरलेस, दैट इंडिकेट्स presence of double bond between the carbon atom. Then alkaline aqueous iodine, that indicates कि आपके पास CH3CHOH ग्रुप होगा, दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, तभी तो हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और जाहिर सी बात है CH3CO ग्रुप नहीं कह सकता, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास एक अल्कोहल है और इसमें एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और इन 2 फंक्शनल ग्रुप्स में से एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा आया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया, OH, दैट इज अल्कोहल। ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, या तो ये ऑप्टिकल होगा या ये ज्योमेट्रिकल होगा। और मुझे इस स्ट्रक्चर को देखकर नजर आ रहा है कि भाई ये ऑप्टिकल हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऑप्टिकल के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं।
एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिकल, लेट मी मेक द स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा CH3 CHOH 1 2 3 4 और 5। सो आप नोट करें, ये कार्बन कार्बन हो गई, क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप्स कैसे हैं? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। और आप जानते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अगर दो सिमिलर हाइड्रोजन होते हैं तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। इसलिए एग्जाम में यहाँ लिखा हुआ था कि इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और इस ग्रुप की वजह से मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसमें कैरल कार्बन एटम होगा। नेम द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म शोन बाय मॉलिक्यूल ऑफ सी। तो आप बोलेंगे ऑप्टिकल। ओके, नेक्स्ट इज, आप चाहे तो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं गाइस, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, CH3 CHOH CH2 CH एंड देन डबल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इसने कोई मुझे स्ट्रक्चर दिया हुआ नहीं है, बताया हुआ नहीं है, तो मैं स्केलेटल बनाऊं या स्केलेटल बनाऊं या ये लिखे दूं, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है उसकी। उसने कहीं नहीं लिखा कि आप स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ही जस्ट आस्किंग ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ठीक है, डी पार्ट। D reacts in the presence of sulfuric acid catalyst to form E and water. The structure of E is shown. आप नोट करें, ये एक एस्टर है और एक साइक्लिक एस्टर है। ये क्लास में हमने डिस्कस किया है, साइक्लिक डायस्टर्स तक बताएं। ये साइक्लिक एस्टर है, ये डायस्टर नहीं, जस्ट साइक्लिक एस्टर। नेम द फंक्शनल ग्रुप्स इन E एस्टर। ठीक है, identify the type of reaction that occurs when D reacts to form E. Where is D? Okay. Mm-hmm. D reacts in the presence. Okay, let me ask. D कहाँ पर है? ये C है, D. Okay. Okay. From E. E reacts in the presence of. अच्छा देखिए, एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है तो स्टेरिफिकेशन कह सकता हूँ, एंड फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज स्टेरिफिकेशन। और आप इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर होता है जब भी एस्टर की फॉर्मेशन होती है। सही है, डी रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एम आई मिसिंग समथिंग? डी की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब डी में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और वो दो, उसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक अल्कोहल होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना लेंगे, तभी तो साइक्लिक एस्टर बनेगा। यानी एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है। अच्छा, अब कितने मॉलिक्यूल का हो सकता है? देखो, यहां से जज करता हूं, मैं यहां से जज करता हूं। ये मेरी फर्स्ट कार्बन है, ये मेरी सेकंड, ये मेरी थर्ड कार्बन, ये मेरी फोर्थ कार्बन, ये मेरी फिफ्थ कार्बन। ठीक है, ये 5 कार्बन एटम है। तो मैं सबसे पहले ये फर्स्ट कार्बन बनाता हूँ, ये आया। उसके बाद ये CH है। अच्छा, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हम एस्टर को ब्रेक करते हैं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक होता है। ये क्या हासिल करेगा? हाइड्रोजन ऑफ वाटर। और ये क्या हासिल करेगा? OH ऑफ वाटर। ये OH हासिल करेगा और ये H हासिल करेगा। तो इस ऑक्सीजन के साथ ये मैं H लगा दूं, ये ऑक्सीजन है, और ये इसने वाटर का H हासिल किया। देन ये CH2 आया, फिर ये वाला CH2 है, और फिर ये CO है, ये वाटर का OH हासिल करेगा।
आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि आपने किस तरह से काम करना है। आप चाहें तो इसको स्केलेटल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर इस तरह से बना लीजिए, CH3 CHOH, CH2 COOH, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ही जस्ट आस्किंग द स्ट्रक्चर। उसने इंस्ट्रक्शंस मुझे क्लियर नहीं दी हुई, तो मैं स्केलेटल भी बना सकता हूँ, मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, राइट? ओके, नेक्स्ट इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ ई इज शोन इन फिगर 5.2। तुम नोट करो, ये 16 17 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर कार्बोनाइल का ग्रुप है। ये CH है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ओके, वो कह रहे हैं यूज फिगर 5.2 एंड टेबल 5.3। फिगर 5.2, where is figure 5.2? Where is figure 5.2? ओ अच्छा, ठीक है। ये फिगर, ये टेबल, इन दोनों को यूज करके मैंने ये तो डिटरमाइन कर ली है। बट वो मालूम क्या करवाना है? प्रिडिक्ट two differences in the absorption above 1500 centimeter inverse of the spectrum of D compared to E. Explain your answer. सबसे पहले हम बात करते हैं E। E के अंदर मुझे एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन का भी बॉन्ड होगा, और कार्बन E में कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का भी बॉन्ड है, which is going to be this in this range 1040 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। और कार्बोनाइल का भी है, और कार्बोनाइल का है 1710 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो ई है। उसके बाद वो कह रहे हैं डी। अब डी हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। सो इन डी में आपके पास OH का बॉन्ड है, तो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर इसकी पीक अपीयर होती है। इसके अलावा COOH की पीक आएगी 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ये ब्रॉड होगी, वेरी ब्रॉड, इनफैक्ट वेरी ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है जनाब, ये हो गया आपके पास। So that's the end of this question. That's the end of this paper, guys. Thank you very much.